brought the Fall Guys 2 book. But what stuck was his thin, lanky frame, the mix of reverence and irreverence, uninterrupted dialogue delivery, stylish swagger, intense eyes, and his scars rounded off by a booming voice that said Khamosh. And then, at the peak of his career, Shatrughan Sinha shifted to politics and continues to create waves till this day. I had first met Bharti ji nearly 7 years ago when she had started writing the book. Publishers need to be patient with the process of writing. I can humbly say today, I have a dear friend in Bharti ji, and she has presented a truly honest account of her checkered life. Thank you, Bharti. I'm also indebted to Poonam ji and the rest of the family for being so supportive of the biography. Shatruji has always affirmed that while Bihar has been his Janmabhoomi, Maharashtra has been his Karmabhoomi. Many from his Karmabhoomi and beyond have joined us today as a tribute they pay for him for the road traveled together. Not all of them were soothing oases, and fortunately so. For what would have made a more memorable biography than one of struggles, differences, arguments, resentments, failures, forgiveness, triumphs, and the soul-cleansing confessions? Would be presumptuous, because everybody knows them better than anybody else. But Siddharth has given you a cue to speak something, and that is why Shatrughan and I are close. He doesn't know. Shatrughan started his politics as a Janta man, and we were all together in that period. We've been friends since. In politics, it happens. He's with the BJP. We are proud of him. He had 2 portfolios in Atal Bihari Vajpayee's tenure as PM. He did very well. Even now, he's a formidable figure in Parliament. And whenever he speaks his mind. Unlike a politician who guards himself, he speaks with all his heart and mind. I welcome you all on behalf of myself, Vijay Kalantri, and the organizations, and I hope you enjoy the evening and we get to hear some very good things from Chief Guest Amit ji and Shotgun. Thank you very much. Both Sonu, we call him Sonu, yes. and Promi. Yeah. We have known I have known both of them for over 40 years individually, much before they became Mr. and Mrs. Sinha. Yeah. So there was a certain amount of trust that they reposed in me. So I always knew that Mr. Sinha had a story which would be both inspiring, at the same time it would be a fun read, because it was going to be honest for sure, it was going to be revealing, it was going to be entertaining, and at the same time I knew it would be inspirational because he is just such a big achiever. So how did you persuade him? Therefore, we had been talking about this off and on, but I remember the one point that really turned it all for us. Oh, okay. There was the book launch of a veteran actor. I cannot name him for obvious reasons. Mr. Sinha was there at the book launch, and when he came back, he told all of us many times, he just kept wondering aloud, he said, why is it that celebrity biographies tend to be always so whitewashed and sanitized? Why is it always just, white all the way? Don't people have grey in their lives? And this is something he kept pondering over and he kept talking about. And that's really the time I think the seed was born in him, when he felt that when I tell my story, I'm going to tell it differently. And if you read the book, he's got this mantra which says, even if you can't be better than anybody, at least be different. Yes. So in keeping with that mantra, he just wanted to be different from the rest, and he was very, very keen to do a different kind of biography which would be completely honest and transparent. That's when the book was born. It was thanks to somebody else's biography which was not so honest. Sonuji, what she is saying, how far is it true, and really are you able to accept the truth about everything? And is that really how it should be? नहीं, अगर ट्रुथ नहीं हो तो फिर लिखने का फायदा नहीं है जी। मेरा अपना ही मानना है, जैसा भारतीय प्रधान कह रही थी कि ब्लैक एंड वाइट के साथ ग्रे का होना बहुत जरूरी है। जी। इस बुक को आप एक
सबसे बड़ी 2-3 चीजें खासियत इस बुक की, एक तो ये है कि ऑनेस्ट बायोग्राफी है, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये लोगों के लिए, it may not be a gift to the nation, but this book could prove to be a gift to the younger generation, कि फिल्मों में या पॉलिटिक्स में, दोनों में डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ हमसे बहुत ज्यादा अमिताभ बच्चन में है, उस पर दो राय नहीं है, लेकिन दो फील्ड में, फिल्मों में और पॉलिटिक्स में, पैशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जुनून, डिसिप्लिन भी कहने वाला था, पर अमिताभ का देख के मैं चुप हो गया। वो तो सिर्फ उनके पास है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार मैं टाइम से पहले आया हूं, वो भी कि मेरी बेटी ने मुझे डरा दिया था कि अमिताभ टाइम पे आने वाले हैं, आप आ जाइए बेहतर। तो ग्रैटिट्यूड के साथ ये कह रहा हूं। तो ये जो दोनों फील्ड में, फिल्मों में या राजनीति में, जो भी उतार चढ़ाव, जो भी संघर्ष के बाद जो भी उपलब्धियां, जो भी सो कॉल्ड अचीवमेंट्स या नेम हासिल किया है, उसके पीछे एक खास बात है कि दोनों में परिवार का, दूर दराज का, रिश्तेदार का साया भी नहीं, ना पॉलिटिक्स में ना फिल्मों में। ना फिल्मों में कोई जूनियर आर्टिस्ट रहा फैमिली से, ना पॉलिटिक्स में कोई वार्ड काउंसलर, एमएलसी, एमएलए भी रहा। यानी दोनों में अगर जाना, और आप नो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला का फजल, वाहे गुरु का आशीर्वाद, प्रभु कैसे मनोकंपा के अलावा आपका अपना पैरों का मजबूत होना और आगे चलते जाना, बिल्कुल ये एक नए जनरेशन के लिए, बहुत लोगों के लिए एक सबक हो सकता है, ये प्रेरणादायी हो सकती है, उत्साहवर्धक हो सकता है, उनको इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। एक तो ये, और तीसरी खास बात इस किताब की है, जिसने दिखाया है कि हर एज ग्रुप के जवान, नौजवान, महिला, छात्र, कोई भी यंगर जनरेशन, ये, और देखिए किसी भी देश में 80% लोग उसी श्रेणी में आते हैं, इन्हीं श्रेणी में आते हैं। ये 80% से ज्यादा लोग जो हैं इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये भी डिटर्मिनेशन के साथ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर वो कर सकते हैं, वो हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम तो उनसे बेहतर हैं, हम में तो ज्यादा फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास वो ताकत है, शक्ति है, हम उनसे बढ़िया कर सकते हैं। अगर आदमी ठान ले तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं ये, आपका मतलब है कि आपके ह्यूमर भी है, रोमांस भी है। उस पर तो रोशनी वही डाल सकती है। I mean with Rumi. हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैं पूनम, अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं मेरी इतनी हिम्मत उनको पूनम जी कुछ से कहूं। कहना चाह रहा था, क्योंकि ये कुछ विषय एकदम से उस तरफ से नहीं। हाँ, तो एक तरफ हमारी ये ओनर ऑफ द सब्जेक्ट बैठी हुई हैं जी, और दूसरी तरफ से कंट्रोलर ऑफ द सब्जेक्ट बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ तो बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि इनको तो खैर, आपको तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब तो आपने पूरी तरह से पढ़ ली है बहुत पहले। तो आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा होगा? सोनाक्षी का? नहीं, मैं मैडम प्रोमी से पूछ रहा हूँ। सोनाक्षी जी से भी वो, नहीं, आपने कहा कि मुझे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आपके इनकी लाइफ का चैप्टर कौन सा बल्कि फेवरेट बुक है? पढ़ने की जरूरत थी, और अच्छा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आई डोंट नो दिस मैन। ओह वाओ। I wish I had known a lot of things. After reading the book, I said, "Oh God, I didn't know this guy." अच्छा, In fact, Prumi has threatened to write a book तो इसके saying the कुछ- man I didn't know. Yes, that will be the sequel to the book, Anything But Khamosh. हाँ हाँ, तो इसकी रिपरकशंस आपने सह ली हैं सोनू साहब? मैं तो झेल रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो वो अब जानते हैं, यहाँ तो सही मानों में खामोश हो जाता हूँ ना। I'd like to know what Sona's favorite chapter was actually. हाँ, सोनाक्षी जी आप भी कुछ एक पढ़ने I'm वाली too scared to read the book. Oh. There are certain things in a parent's life that the child just should not know.
And so I'm like treading very carefully, but I have read a few interesting chapters in the start of the book that talk about his younger days, his childhood, Okay. and certain things that you just skip out in conversation and that we just didn't know, which are very, very nice. But now I'm like holding back from reading any further. It's very Acha. interesting. I've reached the struggling days and the college and like I'm becoming an actor. Bas, wahan tak theek hai. Maybe you can skip 2 chapters and go on to the next. No, dads are idealized. A dad is an idealized person in your life, you would say. Absolutely, of course. I mean, in every girl's life. Okay. So actually, then you have chosen a particular chapter which perhaps you would feel you're comfortable with. So which is that particular chapter that you have chosen, or what lines have you chosen? I'll have to read through the book. I don't remember the page number exactly, but Okay. there's one part that I really, really identify with, and I will read that in some time. Okay, when it comes. All right. So, Romy, Amit were ji- there any surprises? Sorry. No, please. Romy, were there any surprises in the book? Oh, lots of them. They were. Lots Okay. of them. such as? Okay. Oh, they were. नहीं इसको अभी you cannot leave it at that. वो आपको सरप्राइजेस अभी आपको उसको एक अकाउंटिंग देनी होगी आपको. Amit ji, actually, I would say that I think you are the guru of all the books which have been released on any film actor up to now, and it's an amazing thing that you have done it so dedicatedly with so much of honesty. मैं पूछना चाहता, two of you together, are the stars in a firmament that dazzles with its light. And you are two different kinds of personalities. And therefore, that's what we believe. What is your take on that? What is your take on that? And is some of that reflected in the book, perhaps? मैं माइक चेंज करना चाहूँगा. सबसे पहले तो मैं शत्रु को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया लव यू इस पुस्तक विमोचन के समारोह में. और हम दोनों की मुलाकात उस समय हुई जब मैं भारतीय फिल्म उद्योग में प्रवेश कर रहा था. शत्रुघ्न पहले से ही थे वहाँ पर, तो ऐसे मायने में ये हमसे सीनियर हैं और हमेशा रहे हैं. उम्र में हमसे छोटे हैं जी. शायद 4-5 साल छोटे हैं, लेकिन सीनियरिटी के में इनका ओहदा जो है वो बहुत ऊंचा है. मैंने हमेशा माना है कि शत्रुघ्न का जीवन जो है वो बड़ा विचित्र और अद्भुत रहा है. विचित्रता शायद की शुरुआत इनके परिवार से हुई. अगर आप देखें इनका परिवार, तो रामायण जो है वो रची गई है इनके परिवार में. जी. राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई एक ही परिवार में. इनके जब इन्होंने अपना घर बनाया तो उसका नाम भी इन्होंने रामायण रखा. तो यही एक तरह में एक विचित्रता थी. अद्भुत इसलिए क्योंकि जैसा कि अभी मुरारका जी कह रहे थे कि शायद ही हमारे फिल्म उद्योग में कोई भी ऐसा उदाहरण हो जहाँ पर जैसे कि शत्रु ने शुरू की जो भूमिकाएं थी वो खलनायक की और वहाँ पर जब उनको ख्याति मिली तो, और ख्याति कोई असाधारण ख्याति नहीं थी. जी. शायद ये पहली दफ़े देखा गया कि आमतौर पर जब हीरो जो है उसकी एंट्री होती है फिल्म में तो तालियां बजती हैं, लेकिन शत्रु जी के लिए जब शत्रु की एंट्री होती थी तो तालियां बजती थी, यानी एक खलनायक के लिए. ये एक अद्भुत और बहुत ही विचित्र एक वाकया था. दूसरा ये कि खलनायक के बाद ये नायक बन गए, वहाँ भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की. नायक बनने के बाद ये राजनीति में गए और वहाँ भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की. बहुत कम लोग हैं और शायद मेरे मन में तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ पर फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ कोई एक इंसान इतनी चीजें कर इतनी चीज़ें एक साथ की हों. भाई, एक मैं अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये खलनायक के रूप में इतने पॉपुलर हुए, आपको क्या लगता है? मतलब आप बाहर से देख रहे हैं, इनको भी मैं पूछना चाहूंगा, एक खलनायक की पॉपुलैरिटी कैसे इस तरह से हो सकती है? क्या बात थी? जिस तरह से उनका व्यवहार होता है पर्दे पर. हाँ, वो भी है. सोनू दूसरे साहब, इस व्यवहार पे की कुछ बात आप नहीं रोशनी करूंगा. डाल सकते हैं? आपका व्यवहार कैसे था पर्दे पे?
जिसके कारण ऑडियंस आपको इतना अप्रिशिएट करती थी आपके बुरे होने के बावजूद स्क्रीन पे? नहीं, मेरी कोशिश यही रहती थी कि कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह लूं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी अच्छा होने के आसार उसमें लगना चाहिए कि हो सकता है कि सही मौका मिले, सही वक्त आएगा तो शायद ये आदमी सुधर भी सकता है। हाँ। तो पॉसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को हमने उभारने की कोशिश की कैरेक्टर के जरिए, जहां तक मैं कर सकता था। वैसे अक्सर तो अमित भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि तो बेसिकली डायरेक्टर पे और स्क्रिप्ट पे होता है। मैं जहां तक हो सकता था कोशिश की जी। और शायद यही बात है, और शायद उसके साथ कोई डायलॉग डिलीवरी वगैरह पसंद आ गई होगी लोगों को, तो यही बात है कि सो। और तीसरी बात कि लोग जो 80% का जिक्र किया, अगर कोई अब कहता है कि आप हैंडसम नहीं हैं, कटी फटी शक्ल लेकर फिल्मों में आ गए, तो इसका एक पहलू तो हो सकता है कि हैंडसम नहीं रहा होगा, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि काम की सराहना शुरू हुई तो मैं उन 80% लोगों में आ गया जो कि हैंडसम नहीं है जी। तो उनसे आइडेंटिफिकेशन शुरू हुआ। हाँ, उन्होंने क्या बात। आइडेंटिफाई करना शुरू किया, बहुत तो interesting मैं है। उनमें से एक हो गया और उन्होंने कहा बढ़े चलो सिपाही, आगे बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। The common शत्रुघ्न man। सिन्हा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यही अमिताभ के साथ हुआ। अमिताभ के साथ तो बहुत जबरदस्त हुआ है जरा कि ध्यान अमिताभ कीजिए, आप जो क्या कह रहे हैं कि आप आम आदमी हैं। मैं आम आदमी पार्टी का भी जिक्र नहीं कर रहा। But I'd like to know what is the meeting, with Amit so disciplined and Sonu in his time not so disciplined. आदतें होती हैं वो पैदाइशी होती हैं और उनको बदलना नहीं चाहिए। ये शत्रु शुरू से ही ऐसे ही थे। यहाँ ताजमहल, ये ताज होटल के बगल में ही एक जगह है जहाँ पर इनका एक देवदूत। अपार्टमेंट था और वहीं पर हम लोग सब मिला करते थे। और उस जमाने से भी जब ना हमारे पास काम था, इनके पास तो काम था, ये बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन तब भी ये कहीं भी जाना हो तो वक्त का इनके पाबंदी नहीं होती थी। अच्छा। कई बार ऐसा अवसर होता वो था मुझे कि हम सुन लोग रही हैं। कहें कि चलिए गौर आज से। चल के कोई एक पिक्चर देख लेते हैं। जी। हाँ चलो चलते हैं। और समय है 6 बजे का और 6:30 बजे तक ये भाई साहब अपने घर से निकले ही नहीं है। और उनको जब भी कुछ कहो तो अब चल रहे हैं यार चलो। आधा घंटा 45 मिनट किसी भी सिनेमा घर में लेट पहुंचना, उनके साथ साथ हमको भी भोगना पड़ता था कि फिल्म के समय पे फ्लाइट पकड़नी हो कोई जी। तो एयरपोर्ट पे ये जितने भी कर्मचारी हैं दौड़े दौड़े आएंगे, सर वो फ्लाइट जाने वाली है, आप कह रहे आते हैं क्या बोल के ये अपना खड़े रहते थे। और आज तक ऐसा ही है। आज तक वही जारी। आई एम सो ग्लैड कि ये एक क्वालिटी उनकी मुझ में नहीं आई। मैं हमेशा टाइम भारती पे जी पहुंचती कह रही हूँ। थी कि ये आप दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, तो सही कहा आपने। जब हमारे जाने का समय होता था तो उनके आने का समय होता था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि काम खत्म करके जाते थे चाहे कुछ भी हो। और कई बार ऐसा होता था, मुझे बड़ा ताज्जुब होता था, हम लोग एक साथ 2 फिल्मों में काम कर रहे थे जी। एक शान और एक नसीब। जी। और उस जमाने में जितने भी कलाकार थे सब 2-2 3-3 शिफ्ट एक ही दिन में करते थे अलग अलग फिल्मों में। जी। तो 7 बजे से सुबह प्रातःकाल से 2 बजे दोपहर तक शान की शूटिंग होती थी जी। फिल्म सिटी में, और 2 बजे से 10 बजे रात तक नसीब की शूटिंग होती थी चांदीवली स्टूडियो में। जी। तो हम लोग दोनों नसीब के भी क्लाइमैक्स में थे, इसमें भी थे, साथ साथ काम कर रहे थे। 7 बजे से 2 बजे तक काम हो, 2 बजे हम लोग की छुट्टी हो जाती थी, मैं गाड़ी में बैठता था और चांदीवली की ओर जाते थे, ये भी साथ में गाड़ी में बैठ करके चांदीवली की ओर चलते थे। लेकिन पहुंचता मैं था वहां कोई 2:30 बजे और ये कोई 6-7 बजे पहुंचते थे। जाना एक ही जगह है, ये कहाँ चले जाते थे बीच में, ये मैं आपसे आज जानना चाहूंगा। अब तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। The nation wants to know. नेशन वॉन्ट्स टू नो। अब बता के क्या फायदा, ना वो रातें न बातें न जज्बात न समाने, न नदी के किनारा न झुरमुट की ओट न पंछियों का चहचहाना न कौओं का भौंकना, अब कहाँ। तो वेरी नाइस।
आपने फिर भी ये सोचा कि आप अभी विलेन का रोल छोड़ेंगे और आप हीरो का रोल करेंगे, तो ये वो जो एक्चुअली जो सुभाष घई जी ने एक फिल्म आपकी डायरेक्ट की कालीचरण, तो वो उसकी नींव क्या थी? वो क्यों, कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया? आपका आइडिया था, सुभाष जी का आइडिया था, किसका आइडिया था? नहीं, आइडिया उन्हीं का था। पहली बात तो ये बता दूं कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप विलन से हीरो क्यों बने, तो मैं कहता हूं अगर विलन से हीरो बनना मेरे हाथ में होता तो मैं पहले विलन ही क्यों बनता। ये तो हमारी जो, जैसा कि अमित ने कहा कि तालियों के गड़गड़ाहट लोगों को पसंद आने लगा, वही तालियों के गड़गड़ाहट को एग्जीबिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को पास किया, और फिर वो लोग जो कल तक मुझे विलन ले रहे थे शायद उन्हें मजबूर हो जाना पड़ा मुझे हीरो लेने के लिए, हीरो के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए। इस तरह से शुरुआत हुई। अब रही अमिताभ, उसकी सुभाष घई दोस्त की, हमसे पूना इंस्टीट्यूट में सीनियर थे और हमने बड़ी कोशिश की उनके लिए। बहुत अच्छे कलाकार थे, आज भी होंगे, लेकिन उससे बहुत अच्छे कलाकार थे और मेरी बड़ी कोशिश थी कि उनको कहीं रिकमेंड करूं, कुछ उनका काम हो। 2-3 जगह किया भी है मैं कहीं और चला गया, उन्होंने प्राइस इतनी ज्यादा मांग ली कि सो घबरा के उनको ही ड्रॉप कर दिया लोगों ने। लेकिन बाद में वो आइडिया, कहानी वगैरह लिखने लगे और कुछ अच्छे प्लॉट्स लिखा उन्होंने। कालीचरण का लेकर आए, कालीचरण पहले कई लोगों ने ना कर दिया था, मैं उस वक्त स्टार बन गया था, जिसके अभी मेरे दोस्त अमिताभ बच्चन ने पुष्टि की, मैं स्टार बन चुका था जी। और मुझे कहानी सुना कई स्टार्स ने ना कर दिया था मुझे सुनाने, और अक्सर कहते हैं सुभाष घई आज भी, अगर कहीं बैठे होंगे तो वो भी एग्री करेंगे, वो कई जगह कहते हैं कि मैं सुनाने गया था शत्रुघ्न सिन्हा को, तो सो गए थे। वो सही कहा, कहानी सुनकर सो गया था, लेकिन अधूरी बात की उन्होंने। वो कहानी में इतना बिजी था उन दिनों में कि रात के सवेरे के 4 बजे सुनी थी मैंने। अब 4 बजे वो कहानी सुन रहा था कालीचरण की, वो कोई रामायण और महाभारत तो थी नहीं, तो नींद आना स्वाभाविक था, मैं सो गया उसमें। लेकिन जब ये ग्रेट एंड जीनियस, लेट एंड ग्रेट एनएन सिप्पी साहब ने वो फिल्म बनाने की सोची, यानी उनके पास जो पहुंच हुई उन लोगों की, उन्होंने मुझसे कहा और मैंने कहा कि देखिए ग्रेट फिल्म है, जबरदस्त फिल्म है, मेरा तो जानते हैं वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। उन्होंने कहा तुम काम करोगे? हमने कहा अगर आप सुभाष घई को लेकर करेंगे तो मैं जरूर करूंगा। क्या कहानी है नारी साहब, वाह वाह वाह, मैंने सुनी ही नहीं थी कहानी, सो गया था। तो करके ऐसे हुआ, उनको शुरुआत हुई, हम लोगों ने बहुत कहा और चाहा, हमारी कोशिश थी कि सुभाष घई को, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं ही डायरेक्ट करूंगा, और ऐसे उन्होंने डायरेक्ट किया जिसका हमने वर्णन एनीथिंग बट खामोश में किया है। वेरी गुड सर। इनफैक्ट सुभाष जी आ रहे हैं, आज वो लेट है, आपके टाइम से आ गए। और ये जो लेट और जो आपने अमित जी ने कहा कि मैंने सुना कि आपके रेपुटेशन, हाँ, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद अक्सर लोग बिगड़ जाते हैं। गलती से मैं सुधर गया हूँ टाइमिंग के मामले में। मैं फिर भी अभी उतना नहीं सुधरा हूँ जितना अमिताभ बच्चन सुधरे में, शुरू से इतनी टाइमिंग है। लेकिन लेट के मामले में एक याद करना चाहूंगा, आप हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत लेट लतीफ, और लेट लतीफी मेरी खासियत है या रही है फिल्मों में, तो मैं याद करना चाहूंगा एक बहुत ही बड़े, इनके भी बहुत मनपसंद हैं अमित के, और देश के बहुत पसंद हैं, मनपसंद हैं, नेशन नोज हिम सो वेल, मिस्टर मनोज कुमार। और मनोज कुमार जी ने कहा था मुझसे कि ये शत्रुघ्न है, रामायण में इसको राम बनकर पैदा होना था, अपनी लेट लतीफी की वजह से शत्रुघ्न बनकर पैदा हुआ। One thing. When the two of you were working, frame had you and someone else. Slightly is a very conservative term. He always was, wherever he was, the attention he would draw to himself. So we worked in a film called Bombay to Goa. And there was a scene between Aruna Irani ji and me by the side of a swimming pool. I can't remember the location. And we had already finished the dialogue with Shatru, and he was asked to walk away. So he walked away some distance at the back. And then Aruna ji and me were doing our scene right in front of the camera. And in the middle of our dialogue, suddenly one smoke ring comes floating in between our faces. ये भाई साहब वहाँ सिगरेट पी रहे थे, वहाँ से ये स्मोक रिंग छोड़ रहे थे।
ताकि जितना ध्यान है वो अरुणा जी और अमिताभ पे ना हो, उन पे जाए। बट ये एक बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है। जी जी। आपके मतलब सोनू जी, जो किताब में भी नजर है, आपकी लाइफ में नजर है, आपकी मतलब योर वेल्थ आर योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स. नाउ you have friends across the entire spectrum, and some of them are sitting out here. I wanted to ask you, is this your insurance policy? Politically speaking, could be. Could be. Otherwise, it's a part of my nature now. Yes. I believe in friendship. Once a friend, always a friend. जी. मैं निभाता हूँ ना। दोस्ती निभाने की या तो मेरे अंदर अच्छी या बुरी आदत है। जी. लेकिन पॉलिटिक्स में कई लोग ऐसा समझते हैं कि चारों तरफ जो दोस्त लोग को देखते हैं वो, या दोस्त लोग जो मेरे सपोर्ट में आते हैं, जो ऑपोजिशन अलग पार्टीज के, तो कई लोग समझते हैं कि शायद ये इंश्योरेंस पॉलिसी है इनकी। क्योंकि आज के दिन में मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपके जिस तरह के आपके व्यूज हैं, बड़े थॉट आउट व्यूज हैं, लेकिन अलग हैं व्यूज आपके अपनी पार्टी से, तो ये कैसे आप रिकंसाइल कर पाएंगे? देखिए, ये रचनात्मक घड़ी है। ये इस वक्त हम लोग एनीथिंग बट खामोश के लिए यहाँ आए हैं सब कोई, और मेरी जिंदगी का ये भी एक सिद्धांत है कि जिस तरह शादी की घड़ी में कोई बर्बादी की बात नहीं करता, बर्बादी की घड़ी में कोई आबादी की बात नहीं करता, उसी तरह से इस कलात्मक मंच से, रचनात्मक मंच से मैं कोई और इशू की बात करके राजनीति की बात नहीं करता और बात करके उसको दूषित नहीं करता। क्या बात है। Very well said, very well said. And we'll get now to the questions. I have one question to ask, and then please do think about it. We'll select 3 or 4 questions. करते हैं, हाँ, so yeah. So I'll just ask one question. We'll open the door after that. One question which I was wanting to ask Sonu ji आपसे कि ये जो किताब जो है is anything but खामोश, but there was a moment when you could have been everything, including खामोश, forever. Yes. Tell me about that time. Tell us, because that would have been, for a person of your energy, vigor, and your love of life, would have been a very trying, challenging time. What happened? Yeah, there was a moment when we may not have finished this book. It would have been left incomplete. I think, yeah. What was My that? saviors are sitting right here, Dr. Dalal, and Dr. Ram Narayan, and Dr. Anvay Mule, ये सब वहाँ पे साथ, Dr. Vatsal, कोकला बहन हॉस्पिटल में. But having said this, I don't know. जैसा अमिताभ ने खुद कहा जब वो देखने आए थे, very nice of him, very sweet of him. He came with the whole family. उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को अस्पताल के साथ पहले जोड़ के कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा, जो आपने भी कहा कुछ। अब उस समय क्या हुआ, कोई एलर्जी ऐसी हुई कि गैस्पिंग पोजीशन में आ गया मैं, और उसके बाद रिएक्शन था कि क्या था कि कुछ लोगों की नजर लग गई थी कि जब वहां गया वहां पे, और वो तो लगा कि एकदम खामोशी वाली घड़ी आ गई है, ऐसा लगा। बट फॉर दैट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आई ओ माई सेकंड लाइफ टू माई ओनली वाइफ। वो यहाँ बैठी हुई हैं, जितनी सेवा की इन्होंने, जितना ये किया वो शायद कोई नहीं कर सकता था, किया। एंड मेरे अंदर वो जील, वो एंथुसियाज्म, और प्लस ये किताब भी तो कंप्लीट करनी थी और नई किताब शुरू करनी थी। बहुत अच्छा कहा। बट आपने इनको कुछ अलग नाम से पुकारा, वैसे ओनली वाइफ आपने कहा, हैवी। अरे कुछ नहीं, कर्म पत्नी भी यही है, धर्म पत्नी भी यही है, सब कुछ यही है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और इन लोगों ने बहुत सेवा की, बहुत से। बट आई डू नॉट नो, अभी तो हमारे जितने डॉक्टर्स फ्रेंड बैठे हुए हैं यहाँ पे, दे हैव बीन वेरी काइंड, इवन टीना एंड अनिल अंबानी, दे हैव बीन वेरी वेरी काइंड, एंड इतना ख्याल रखा कोकला बहन में, तो लगा मुझे सेकंड लाइफ मिली वहां पे। मे बी इट वाज, आई हैड लॉस्ट द गोल्डन आवर, इट वाज ओनली द गोल्डन मिनट्स, 1 2 3 है ना, मिनट्स की बात थी। और एक और खतरा था वहां पे, जब गैस्पिंग पोजीशन में गया था, if they had not taken the quick decision, timely decision, तो एक और हो रहा था कि शायद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता। जो आप याददाश्त की तारीफ करते हैं कि मैं 10-10 पेज के डायलॉग या 6-6 पेज के डायलॉग जो पढ़ देता हूँ, चाहे याद रखता हूँ, याददाश्त अच्छी है, उन लोग को खतरा लग रहा था कि शायद कहीं अगर वहां ऑक्सीजन ब्लॉक हुआ हो तो दिक्कत है।
बट फॉर्चुनेटली बस एन वक्त पे सब कुछ ठीक होता गया, राइट हैंड्स में राइट टाइम गया। इसलिए कोकिला बहन से बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और एक अच्छी सेहत और मैं समझता हूँ लंबी उम्र लेकर आया हूँ। क्या बात है। And we have all an opportunity because of that to ask just 5 questions we can give time for. I wanted to ask you one quick question. I'm throwing you into it. थोड़ा टाइम की बात है। आपने कुछ कालीचरण की बात भी की थी कि आपने जो डायरेक्ट की। मैं एक आपसे पूछना चाह रहा था एक बात। दिस इज वेरी फ्रैंक बुक, वेरी ऑनेस्ट बुक। तो आपका भी एक फ्रैंक और ऑनेस्ट आंसर मैं आपसे चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपने दोस्तों के लिए बड़े टची हैं और ज़रा बहुत जल्दी ही गेट्स अपसेट अबाउट थिंग्स, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले तो मैं माफी मांगूंगा कि मैं लेट आया। ये जो देन है लेटाने की, ये हमारा एक स्कूल है, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने हमें दी है। बहुत से दोस्तों ने आते सिखाई हैं, इन्होंने सिखाया जल्दी आना, टाइम पर आना। इन्होंने सिखाया लेट आना, लेकिन कॉन्फिडेंस से आना। लेकिन ये भी था कि लेट आते भी थे और लेट जाते भी थे और बाकी लोगों को जगाते भी थे। तो एनीवे वो बातें तो होंगी। बाकी आपने जो पूछा कि दोस्तों के बारे में बहुत टची हैं थे और हैंगे, आप कौन से दोस्तों की बात कर रहे हैं, मेल या फीमेल? एक तो टचिंग होगा, अदर विल बी टची। क्या लगता है? देखिए, ये तो खुलासा आपने कुछ ज्यादा कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा अगर मैं जानता हूं और पहचानता हूं जी और मानता हूं, तो ये है कि ये अगर इनकी वो सोनोग्राफी वगैरह कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये दिमाग से तो कभी नहीं, दिल से ही सोचते हैं। जो आदमी दिल से सोचता हो वो टची तो हर बात पे होगा। और दोस्तों के लिए, रिश्तों के लिए, रिश्ते निभाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा इज नोन फॉर बीइंग वेरी टची पर्सन, एंड आई थिंक यू ऑल नो। इनके जो चाहे स्टेटमेंट्स हों या हरकतें हों या मोहब्बत हो, सबसे खूबसूरत बात जो मैंने नोटिस की है, हमारे बहुत से दोस्त पर हैं, पुराने भी नए भी, जब भी मैं इनकी पार्टी में कुछ 35 साल से जाता हूं, आप भी आते हैं, इनकी बर्थडे की पार्टी हो या कोई महफिल हो, और आज भी जो महफिल होगी आप देखिएगा कि सभी पुराने दोस्त 35 साल 40 साल से जो पुराने चले आ रहे हैं, चाहे भारती जी हैं, चाहे मुरारका साहब हैं, ये दोस्त हैं, आप सभी पुराने दोस्त मैं हर साल इनकी इनवाइटिंग लिस्ट में देखता हूं। हमारे दोस्त बदलते रहते हैं, हिट कौन हुआ, फ्लॉप कौन हुआ, आया कौन, गया कौन। मार्केटिंग एजेंसी हमको बताती है अब इसको निकाल दो, इसको रख लो, लेकिन इन्होंने कभी भी दोस्तों को छोड़ा नहीं। आज भी हम पुराने दोस्त बैठे हैं, और अमित जी, शत्रु जी, मैं, हम लोगों ने साथ में ही स्ट्रगल शुरू की, साथ में आए, मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, और आज मैं खुश हूं कि आज सब लोग इंक्लूडिंग अमित जी आप आए, सब लोग आए। तो ये प्रमाण है इनका कि रिश्तों में और बहुत भावुक रहे हैं और रहेंगे हमेशा। थैंक यू वेरी मच। एक बात सिर्फ करना चाहूंगा, 10 सेकंड का इसके इंटरव्यू कर रहा हूं कि इन्होंने कहा दिल से और दिल की बातें की। ये फैक्ट है, मैं दिल का बहुत कायल हूं, और मैं तो दिल की ही बातें करता हूं, मन की बातें तो कर नहीं सकता, कोई और कर रहे हैं, मैं दिल की बातें करता हूं। थैंक यू। So we,
So we have an opportunity to ask a couple of questions quickly before we release the book. So is there anybody out here who would like to? Yeah, here. 1 minute. We will have to choose a person who wants to ask. You want to ask a question? थैंक यू के नाम से अपने बुक को हाईलाइट किया और यहाँ आकर एक अलग चीज देखने को मिल रही Your है। question दो is सवाल taken. थैंक यू वेरी मच। दे दूं? पहली बात तो आपने कहा कहाँ मैं ठहर गया, तो ये ठहराव तो बड़ा जबरदस्त आया जब मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और उस वक्त तो लगा कि मैं ठहर गया, दुनिया ठहर गई, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ खत्म है। इसके बाद ये मुझे इसका भी अफसोस हो रहा था कि इस बायोग्राफी का क्या होगा। एक तो वो था। दूसरा आपने जो कहा कि सो अमिताभ जी के बारे में और ये कि कैसे वो सब कुछ अनुभव जो हमने लिखे हैं, ये बातें सब कल की हैं, लेकिन अगर नहीं करता तो ये ऑनेस्ट बायोग्राफी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरे दिल में कुछ भी खटास है या कुछ भी इनके खिलाफत है, नहीं। वो जवानी का जोश था, स्टारडम का तकाजा। अगर हम लोग कभी आपस में अगर ऐसा लगा तो दोस्तों में तो होता ही, हम दोस्त हैं तो हमें लड़ने का भी हक है, एक दूसरे से डिफर करने का भी हक है, डेमोक्रेसी है। तो जो स्टारडम का तकाजा, जवानी का जोश ये होता। लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछो, उसको डाला है हमने अनुभव को, लेकिन आज आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा मेरे दिल में अमित के लिए इतना आई होल्ड हिम इन सो हाई स्टीम कि आई इन ट्रू सेंस आई बिलीव दैट ही इज द पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियम in terms of being a great actor, greater star, and a further greater human being. ऐसा है। तो ये तो चलता रहता। दिन में सुभाष घई के बारे में इतने सालों की दोस्ती है, चलता रहता है। लेकिन ये नहीं कोई झगड़ा हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का मेरा ये मतलब था कि लोगों को बताऊं कि ऑनेस्ट बायोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट के साथ ग्रे साइड भी होता है, और इन सब चीजों से आपको उभरना है लाइफ में। सब जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं किताब से, वो लोग ये भी रियलाइज करते हैं एक तरफ व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, और दूसरी तरफ कि ये सब आपकी जिंदगी में किसी न किसी रूप में आएंगे कभी न कभी। कुछ अच्छी बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें, तो उनसे कैसे बचकर निकलना है और उभरना है। इसलिए मैंने कहा एनीथिंग बट खामोश एक प्रेरणादायी, उत्साहवर्धक किताब है, और खासकर यंगर जनरेशन के लिए। थैंक यू। Yeah, well, we are running short of time. We'll ask one lady. Can a lady ask a question? कौन? सोनू जी ने बताया। देखिए, प्रेम प्रसंग के बारे में जो जिक्र आपको दिखता है, जो बातें लगती हैं आपको, और वो सब मैंने जब कहा कि अपने जिंदगी के कुछ अनुभव हैं, कुछ निचोड़ है अनुभवों का, और ये तो मैं यही कहूंगा कि महिलाओं की डिग्निटी का ख्याल रखते हुए, अपनी अपब्रिंगिंग, अपने फैमिली वैल्यूज का ख्याल रखते हुए, अपनी वाइफ का ख्याल रखते हुए, अपने बेटी सोनाक्षी का, अपने बच्चे लवन कुछ का, अपनी बेटी तरुणा का ख्याल रखते हुए, अब हमारा भी राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि कोई ऐसी बात ना करूं किसी के बारे में जिससे कुछ ठेस पहुंचे, सिर्फ टिटिलिएशन के लिए या सेंसेशनाइज करने के लिए नहीं। इसलिए डिग्निटी ऑफ द वुमेन और सब्जेक्ट की डिग्निटी दोनों का हमने ख्याल रखा है, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखते हुए। और अब आप जानना चाहते हैं पुराने प्रेम प्रसंग, तो सुभाष घई तो खैर बहुत सुना सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कह सकता हूं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे। Copy of the book with me.
But I'll tell you all what I think about what I've read about it so far. Oh, thank you. मैं बात करना चाहूंगा पापा के सफर के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। आज जब हम सोचते जो संघर्ष है वो संघर्ष, सॉरी, आज जो हम कहते हैं संघर्ष है, मैं उसको संघर्ष तो नहीं मान सकता हूं। संघर्ष जो अमित जी ने देखा, जो मेरे पिताजी ने देखा, जो सुभाष मामा ने देखा, वो एक अलग किस्म का संघर्ष था। जब FTI से आए पापा, it was a very different time. There was no system as such, no casting directors, no ways of trying to get in. आपको अगर आपको जाना होता कहीं पे तो कभी कभी ऐसे होता था कि आप क्या पैसे नहीं होते थे कि आपको कहीं पहुंचना तो आप चल के जा रहे हैं, दूर दूर तक चल के जा रहे हैं. A very different type of struggle. Today we think about actors, they come in cars to meet people, they have access to casting directors, they go for meetings. It's a very different time. So I'd like to talk about Papa's time at FTI, and maybe again, because of Papa not doing this, I maybe had to do it extra hard. About Papa's time at FTI, where how he studied, and what he did not study. His second negligence at FTI caught up with him in the film studios of Mumbai. I had to pay a heavy price for not taking my dance classes seriously. He accepted. During the filming of Rampur Ka Lakshman, Kamal Dance Master was picturizing the chartbuster, Pyar Ke Samay Kam Hai Jahan, with Rekha, Randhir Kapoor and me. And I had to give 13 retakes. Now an actor who is known to be a single take artist is saying that he had to give 13 retakes. They were ego-busting experiences. Again, something that you don't hear of, that Papa, in terms of his confidence getting shaken up by something. He said regretfully, if only I had taken my dance classes seriously, I wouldn't have had to face this humiliation, because otherwise I had gained popularity as a one-take artist, as I said. But in every other way, the training at FTI gave the unmoored SS an opportunity to anchor himself, work towards a dream goal, and cover new ground. It was here that he first discovered the joy of an instant response from a live audience. I did Yatri, a play for the first time in my life. He could still recall its pleasurable aftertaste. I got so many compliments for it. It was a new high that I discovered. I played a complete villain who finally breaks down and repents. Yatri was based on the real headline-making story of a girl who had been abandoned at the railway station by her lover. Even Jawaharlal Nehru and others had got involved in it and had supported the girl. He was at home on stage because of the confidence he exuded. There's a very thin line between confidence and overconfidence he warned. Confidence has to be backed by something substantial, substantiated by performance. My determination to head somewhere brought in confidence, and it was a huge asset for me at the Institute. When I think about my father, and when I think about us young actors who are trying to achieve goals, I'm always reminded by him, use your time wisely, focus on yourself, do not get distracted. अर्जुन की आग की तरह आप भी सिर्फ निशाने पे अपना ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, हिम्मत मत हारिए. Thank you. Because I gave a lot of thought to what I'm going to say here and why I should say it. So let me talk about the people here. The gentlemen and ladies present behind me are examples of real success stories who have faced failure, fought against it, strived for their success, and achieved it. And because this, they inspire us every day. That's why we give them the respect that they deserve. Seeing Amit Uncle and Pa here today, it reminds me that they are undoubtedly different personalities, but with many similarities. Both are dominating personalities, both have memorable voices, both are masters of their craft. But the most important and crucial commonality between both men is, as my father would put it in one word, junoon.
That is why they are who they are. Pa and Amit uncle have a long history together, and their journey has been filled with ups and downs, friendships and indifference. The general media may perhaps choose to focus on their disagreements and conflicts, but if you can look beyond that, there is a lot more one can learn from these giants. I'll read out what Amit uncle has said in the book. So long as the basics are in place, nothing else matters. And I have always felt that our basics are intact. When he has invited me, I have attended, and vice versa. There are times when there was no invite and still there was attendance. When my father was breathing his last, I shall never forget Shatrughan's visit to Pratiksha, late at night, to offer not just his concern, but also as Minister of Health, to give assurance to me that if the ministry could do anything, then do not hesitate to ask. This I shall value above all else, ever. When he had his heart surgery, we went to visit him in hospital. No one called me to come see him. Basics, they are important. The basics and culture and upbringing, that is what is most important. So to conclude what I've just said, we should look at the respect they have for each other and how they have tried to be there for each other in good times and not so good times. That is what is important. And that is what I hope all of us will learn from them and from this book, that the basics are important, no matter where you are in your life and no matter how high you rise. Thank you. Acha, before Mr. Bachchan, बोल before दिया Mr. यार, जो भी Bachchan बोलना। says something, I'd like to say. इतना बोलना था बोल दिया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, पत्रकारगण और मीडिया के सब सज्जन पुरुष, मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस पुस्तक का जो विमोचन है वो हम सबके हाथों होगा। बहुत सारी बातें जो शत्रुघ्न जी के बारे में कहनी थी वो मैं पहले ही कह चुका हूं और इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। जैसा कि लव और कुश ने कहा कि जब हम लोगों की बेसिक सही हो, बाकी सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। बहुत सारे प्रश्न उठाए भाई साहब आपने और शायद उधर से भी कुछ प्रश्न आने थे। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे थे। शत्रुघ्न हमसे उम्र में छोटे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि जो छोटे होते हैं उनका अधिकार बनता है कि वो बड़ों के ऊपर जो भी लांछन कसना चाहें कस दें। तो मैं उसको स्वीकारता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर ये रिश्ता मित्रता का, दोस्ती का ना होता तो ये जो लेन देन है ये भी ना होता। और ये बहुत आवश्यक होता है दो मित्रों के बीच में कि ये आवन जावन, गाली गलौच, चिढ़ना, रींझना, ये सब चलता रहे। छोटे जो होते हैं वो, मैं ऐसा मानता हूं, उनका ज़्यादा महत्व होता है। ये जो क्षेत्र से जहाँ से आते हैं ये, वहाँ का एक बहुत मशहूर दोहा है कि सत्संज्ञा के दोहरे जैसे नावन तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। I would